some defects or some impurities or irregularities may occur in the ideal pattern. So, so these deviations from perfect arrangements may occur due to rapid cooling or presence of additional particles, or also sometimes on rapid heating. So by this process we can change the pure or ideal crystal into their defects or imperfections. So basically the defects are in two types. One that is very in short called point defects, that means defects in a point only. जब एक पॉइंट्स में इम्प्योरिटीज होता है, कहीं इम्परफेक्शंस आया एक छोटे सी जगह पर, एक एटम्स में या एक मॉलिक्यूल्स में या एक आयंस में, देन इट इज कॉल्ड point defects. And see the second one, that is line defects. So what is line defects? Line defects means imperfections through the line. through a line में यदि कहीं impurities imperfections आ रहा है, that is called line defects. But in class 12 in our NCERT book it is given only point defects. हम लोग को point defects पर ही डिस्कस करना है. Line defects and Bragg equations are given in higher classes. This is not in our syllabus for class 12 students. So today we will focus on point defects only. So what is point defects? So point defects are the irregularities or deviations from ideal arrangements around a point or an atom or an ion or molecules in a crystalline substance. Point defects can be further classified into three types: stoichiometric defects, impurity defects, non-stoichiometric defects. So before knowing the defects, we will move towards the things that is for solid state. So see, this is organic chemistry part 5. Back towards the solid state whiteboards. I come towards my whiteboard and see here solid state whiteboards. In 12K I taught the solid state. So see this class 12 chemistry solid state imperfections in solid. This is the heading I just taught in class 12K. So point defects and line defects. There are two basically defects we have to study. So point defects, that is defects in an atoms. So which types of atoms? See the three images here: simple unit cells, body centered cubic unit cells, and end centered cubic unit cells, and the last one face centered cubic unit cells. And the arrangements of atoms, you can just see that simple unit cells contains 8 corners, 8 atoms, and the contributions of each corners is 1/8. So total number of atoms you can see here I have written 1. So total number of atoms यहाँ 1 ही होगा. But BCC में corners 8 होते हैं और contributions 1/8. So total number of atoms of corners of 1, and in the center of body, क्योंकि यहाँ हम लोग देख रहे हैं जो center of body है इस जगह पर C जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो वहां सेंटर में दिख रहा है ब्लैक कलर का जो किए हैं, क्लियर दिख रहा है. सो दिस इज द सेंटर ऑफ बॉडी. सेंटर ऑफ बॉडी में भी एक दिख रहा है, तो 1 into 1 उसका सेंटर ऑफ बॉडी में मतलब उसका पूरा कंट्रीब्यूशन होगा. तो कॉर्नर्स के साथ साथ जो सेंटर ऑफ बॉडी है उसको भी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट विल बी 1 and 1. सो टोटल 2 एटम्स आर देयर. इन ECC also the contributions of corners 1 होगा, क्योंकि हर में कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1 होता है, एंड 2 ends होता है, दोनों ends में हाफ हाफ का कंट्रीब्यूशन होता है, तो हाफ into 2 then it is 1. so total atoms is 2. and FCC that contains 1 in the corners and 6 faces में हाफ हाफ atoms का कंट्रीब्यूशन होता है, तो हाफ into 6. तो atoms कहाँ प्रेजेंट है, we can see in the
फेसेस ऑल्सो, एटम्स फेसेस में भी प्रेजेंट है। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कॉर्नर्स में तो है ही और फेसेस में है। फिर से यदि हम लोग एक बार इसको मिटा करके बनाएं तो यहाँ से देखो कैसे है। तो यहाँ एक कॉर्नर्स है, इस कॉर्नर्स को हटा दें, ये कॉर्नर से एटम हट गया, यहाँ से ये हट गया फेसेस से, ये फेसेस से, ये कॉर्नर हट गया, ये फेसेस हट गया, ये कॉर्नर हट गया, ये कॉर्नर हट गया, ये कॉर्नर हट गया, यहाँ का कॉर्नर हट गया, ये फेसेस था ये हट गया, ये कॉर्नर हट गया, ये कॉर्नर हट गया, यहाँ दो फेसेस था हट गया। तो हम एटम्स को हटा दिए। अब फिर से एटम्स को हम ड्रॉ कर रहे हैं। सो सी एटम्स आर प्रेजेंट इन द कॉर्नर्स। तो कितना कॉर्नर्स है? सीधा कॉर्नर 1, कॉर्नर 2, कॉर्नर 3, कॉर्नर 4, कॉर्नर 5, कॉर्नर 6, कॉर्नर 7, कॉर्नर 8 कॉर्नर। कॉर्नर तो क्लियरली दिख रहा है इमेज में। अब 6 फेसेस होगा। सो वेयर द फेसेस? फेसेस मींस जो हम लोग देख पाते हैं, जो हम लोग टच कर पाते हैं, जो फर्स्ट लेयर होता है, दैट इज कॉल्ड फेसेस। इंटरफेस इज कॉल्ड फेसेस। So see how many interfaces are there in the top and bottoms? दो इंटरफेस तो यहाँ ऊपर और नीचे ये दिख रहा है, क्लियर है। लेफ्ट एंड राइट दो दिख रहा है, तो 4 फेसेस तो यही दिख रहा है। और 2 फेसेस जो हम लोग को नहीं दिख रहा है वो हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग 4 ही फेस देख पाते हैं कोई भी सॉलिड क्रिस्टल्स। 2 फेस हमारे ऑपोजिट में होते हैं, एक ऑपोजिट हो गया और एक ग्राउंड वाला हो गया, इसको हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं। तो 6 फेसेस का कंट्रीब्यूशन होता है हाफ, और टोटल फेसेस 6 है तो 3 आ गया। दैट्स व्हाई आई हैव पॉइंटेड हियर 3। सो 3 एटम्स ऑफ फेसेस एंड 1 एटम्स ऑफ कॉर्नर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू हम यहाँ कितना लिखे हैं? 4 लिखे हैं। क्लियर? दिस वन इज 4 टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तुम लोग देख सकते हैं सिंपल में 1 है, बीसीसी में 2 है, ईसीसी में भी 2 है, बट एफसीसी में 4 है। एफसीसी का दूसरा नाम एचसीपी भी होता है, हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। सो दीज आर द आइडियल अरेंजमेंट्स। अब इस आइडियल अरेंजमेंट्स में यदि कोई इम्परफेक्शंस या डिफेक्ट्स आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट्स। एक पॉइंट में कहीं यदि इम्प्योरिटीज रहे, देन इट इज कॉल्ड इम्प्योरिटी और imperfections in solid. Clear? Now move towards our notes. So see, point defects is further classified into 3 types of defect: stoichiometric defects, impurity defects, and non-stoichiometric defects. So what is stoichiometric defect? First, stoichiometric defects. So these are point defects that do not disturb the stoichiometry of the solids. ये solids के stoichiometry, what is stoichiometry? Means its molecular formula. ये molecular formula को चेंज नहीं करता है, stoichiometry को चेंज नहीं करता है, then it is called stoichiometric defects. They are also called intrinsic or thermodynamic defects. So stoichiometric defect or intrinsic defects or thermodynamic defects, all the 3 words have same definitions, that those defects which do not disturb the stoichiometry or molecular formula of compounds are called stoichiometric defects. जैसे NaCl पहले था, यदि कोई डिफेक्ट्स में हो भी गया तो फॉर्मूला NaCl ही रहेगा, उसमें फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर? सो स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट्स इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 classes, Frankel and Schottky defects. So in ionic solid basically there are 2 types of defects, Frankel and Schottky. So see details, हम यहाँ पेस्ट कर दिए एक डायग्राम को, जिस डायग्राम में 3 पॉइंट डिफरेंसेस दिया है। फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड्स में Schottky डिफेक्ट्स दिया हुआ है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, और फ्रैंकल डिफेक्ट्स है। तो इस नोट्स को हम क्लास के बाद शेयर कर देंगे 12D ग्रुप में, हर किसी को पढ़ने में सुविधा होगा। नोट्स कॉपी में इसको नोट कर लेना है और होमवर्क जो क्लास वर्क कॉपी है उसको कंप्लीट करते जाना है कि 1 मई को सेंड करने के लिए उसका मैसेज भी आया। So what is Schottky defects? First see about Schottky defects. After that I will discuss about the Frankel defects. So Schottky defects यहाँ दिया हुआ है, it is due to equal number of cations and anions missing from lattice sites. Lattice sites से जितना cations मिस करेगा उतना anions भी मिसिंग होगा, मतलब equal number of cations and anions. Suppose 1 cation is missing, then 1 anions will also missing. तो यदि इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस कोई भी सॉलिड से मिस हो रहा है, रिमूव हो रहा है, लॉस हो रहा है,
दैट मीन्स इसका मॉलिक्यूलर वेट घटेगा, ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर वेट विल बी डिक्रीजेस. So if its molecular weight decreases, then see the point number 2. It says this results in the decrease in density of the crystals. तो यदि मास घटता है तो डेंसिटी भी तो घटेगा. That's why the density of the crystal decreases in Schottky defects. फ्रैंकल में नहीं घटता है बट Schottky में घटता है. तो ये 3 पॉइंट्स माइंड में सेव करके रख लो अभी से, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका. Sure in your exam, maybe it is periodic test or half yearly exam or pre-board or boards, for each and every exams these two defects are very important, Schottky and Frankel's. and distinguish पूछा जा सकता है, एग्जांपल पूछा जा सकता है, रीजन बेस्ड क्वेश्चंस दिया जा सकता है. तो क्वेश्चंस के बेसिस से ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स में. तो क्या होता है, ये इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस मिसिंग होने से ऐसा होता है. This results decrease in density of the crystal. Crystal का density decrease हो जाता है. And the third one, last, these types of defects is found in highly ionic compounds. Highly ionic means which have more polarity, negative positive difference ज़्यादा रहेगा. जैसे ग्रुप 1 का और ग्रुप 17 का यदि कोई मिल करके कंपाउंड बना हुआ है, जैसे Na belongs from group number 1 and Cl belongs from group number 17. So Na is highly positive charge, Cl is highly negative charge. That means NaCl shows these types of defects, that is Schottky defects. Similarly, potassium chloride also shows, potassium bromide shows, cesium chloride shows these defects. तो जनरली जितने भी ग्रुप 1 का कैटायंस और ग्रुप 17 का एनायंस मिल करके कंपाउंड बनाएगा वो Schottky इफेक्ट शो कर सकता है इजीली. क्लियर? वन मोर थिंग, यू शुड कीप इट माइंड दैट Schottky defects arises in the crystals whose size of cations and anions is near about same. बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है क्योंकि सोडियम का साइज बड़ा होता है बट सोडियम लॉसेस 1 इलेक्ट्रॉन, देन साइज डिक्रीजेस, साइज घट जाता है. कैटायंस का साइज एटम्स से छोटा होता है बट एनायंस का साइज एटम्स से बड़ा होता है. क्लोरीन का साइज काफी छोटा है बट क्लोराइड आयन का साइज बड़ा है बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है उसमें, न्यूक्लियस उसको इफेक्टिवली अट्रैक्ट नहीं कर पाता है बिकॉज प्रोटॉन इज लेस देन इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई साइज इंक्रीजेस. So this is all about Schottky defects. Now move towards the second defect, that is called Frankel defects. So it is basically Frankel defects is called dislocation defects. Dislocate कर जाता है, इसमें missing नहीं होता है. But Schottky defects is vacancy defects. में vacancy create होता है, vacant places हो जाता है. So Schottky defects in another words it is also called vacancy defects, and Frankel defects in another words is also called dislocation defects. So see how dislocation defects takes place. So it is due to the missing of ions, usually cations और smaller size ions. तो मिस कौन करेगा, जो छोटा साइज का होता है वही मिस कर सकता है ना, बड़ा चीज तो जल्दी से नहीं खोएगा. कंप्यूटर तो चोर भी नहीं चुरा के ला जा सकता लेकिन मोबाइल होने का बहुत ज्यादा डर रहता है. सो सी एग्जैक्टली सेम ईयर इन Frankel defects. इट इज ड्यू टू मिसिंग ऑफ आयंस. तो आयंस में यूजुअली कैटायंस, मतलब याद रख लो जिसका साइज छोटा होगा वो मिस करता है. सो इट इज ड्यू टू मिसिंग ऑफ आयंस यूजुअली कैटायंस और स्मॉलर साइज आयंस फ्रॉम द लैटिस साइड और आइडियल क्रिस्टल. आइडियल क्रिस्टल से कैटायंस का मिस होना Frankel defect से. एंड दे ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट्स. तो वो जो मिसिंग होता है वो मिसिंग मतलब कंप्लीटली मिसिंग नहीं होता है. दे आर डिसलोकेटेड टू देयर इंटरस्टिशियल साइट्स. व्हाट इज इंटरस्टिशियल साइट्स? इंटरस्टिसेस और वॉइड्स और गैप और वैकेंट प्लेसेस. तो जहां वैकेंट प्लेसेस है, सपोज हम एक डायग्राम बनाए हैं, तो सी द व्हाइट बोर्ड, आई एम गोइंग टू ड्रॉ डायग्राम. So see this diagram. For this diagram I will take a scale. So see, I put the scale and I will draw
So one line, the second line, this is the second line, this is the third line, this is the fourth line, fifth line, सिक्स्थ लाइन। सिक्स्थ लाइन ड्रॉ कर ली, अब इसको हम इन्वर्ट कर रहे हैं, मूव टुवर्ड्स दिस। So say I am drawing to see how lattices are presents, कैसे लैटिस प्रेजेंट्स होता है। इतना ही लेते हैं, आगे हम लोग इसका जरूरत नहीं है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। Clear or not? See what happens if I will take cations. So here cations, here anions, here cations, here anions, here cations, anions, cations, anions, cations, anions. So suppose this cation is become vacant here, और यहां से उठ करके ये कहीं दूसरी जगह जहां इंटरस्टिशियस है, खाली प्लेसेस मिला उसको, सपोज यहाँ ये खाली प्लेस है, तो ये यहां से उठ करके इस जगह पर चल जाएगा, इसको हम लोग यहां से उठा करके इस जगह पर ले जाएंगे और यहाँ ये ब्लैंक्स हो जाएगा। तो सी हियर ब्लैंक्स। तो दिस लाइक दिस इट इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट्स। फ्रैंकल डिफेक्ट्स में अपने जगह को छोड़ करके कहीं दूसरा इंटरस्टिशियस में चल जाता है, बिकॉज यहाँ ये खाली प्लेसेस है, तो खाली प्लेसेस में चल जाता है। रेस्ट यहाँ रिपीटिंग पैटर्न रहेगा, सो इट विल बी माइनस, इट विल बी माइनस, इट विल बी प्लस, इट विल बी माइनस, और इस तरह से चलेगा। तो इंटरस्टिशियस मीन्स वैकेंट प्लेसेस, जहाँ वैकेंट प्लेसेस रहता है उसको हम लोग इंटरस्टिशियस बोलते हैं। तुम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि इंटरस्टिशियस में जाकर के वो मूव हो गया या फिट हो गया। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट्स। बट इन केस ऑफ शॉर्टकी इफेक्ट्स, सो व्हाट हैपन इन शॉर्टकी इफेक्ट्स, सपोज हम इसको ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं। So in Schottky effects, it is made up of NaCl, so Na positive, Cl negative, Na positive, Cl negative, so positive, positive, negative, negative, positive, 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 oh sorry, negative, 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 negative. So it is NaCl, suppose it is NaCl, तो इस NaCl में हम लोग अब क्या देखेंगे कि दो इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस कहीं से भी मिसिंग हो सकता है। तो कहाँ से मिसिंग कराना है हम लोग, यहीं से करा सकते हैं। सो सपोज फ्रॉम द लास्ट प्लेस, तो लास्ट प्लेस से एक हम लोग मिस कर रहे हैं और एक फर्स्ट प्लेस से। सो यू कैन सी द मिसिंग, यू कैन सी हियर कैटायंस एंड एनायंस मिसिंग। यहाँ से क्या मिसिंग है, कैटायंस मिसिंग है, और यहाँ से क्या मिसिंग है, तो यहाँ से एनायंस मिसिंग है, यहाँ से कैटायंस और यहाँ से एनायंस। क्लियर? तो कैटायंस और एनायंस both are missing. So by this drawing we can say this is vacancy defects, but this is dislocation, it is dislocation defects. तो डिसलोकेशन हो गया है। सो डिसलोकेशन डिफेक्ट्स कब होता है, जब फ्रैंकल डिफेक्ट्स होता है। सो दिस इज फ्रैंकल एंड दिस इज शॉर्टकी, SCHOTT, शॉर्टकी डिफेक्ट्स। सो क्लियर अबाउट फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट्स। हम लोग इसको और अच्छे से देखने के लिए एक एनिमेटेड वीडियो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो उसको ज्यादा अच्छा से क्लियर कराएगा। Now we will move towards our notes. So see, the next part of
it is impurity defects. So Frankel defects, Schottky defects. One more thing, that is exceptions. AGBR सिल्वर ब्रोमाइड से एक एक्सेप्शंस है जो दोनों तरह का इफेक्ट शो करता है, Schottky as well as Frankel. Clear? So you have to keep in mind that AGBR exceptionally has both Schottky and Frankel defects. Frankel defects are not found in pure alkali metals. Pure alkali metals का कोई भी यदि हैलाइड्स रहेगा, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड्स या फ्लोराइड्स, तो वो कभी फ्रैंकल इफेक्ट शो नहीं कर सकता, वो हमेशा Schottky इफेक्ट्स ही शो करेगा. बिकॉज कैटायंस आर ऑफ लार्जर साइज, तो लार्जर साइज का कैटायंस रहेगा तो जनरली वो लॉस नहीं होता. नेक्स्ट वन, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स. So what is impurity defects? It arises when foreign atoms or ions also present in the lattice. Lattice में foreign मतलब बाहरी कोई एटम से ions present रह सकता है, तो वो impurity defects होगा. In case of ionic compounds, the impurity is also in ionic in nature. When the impurity has the same charge as the host ion, it just substitutes some of the host ions. Impurity defects can also be introduced by adding impurity ions having different charges than the host ions. Molten NaCl containing a little amount of strontium chlorides is crystallized in such cases. तो क्या होता है, NaCl को यदि हम लोग हीट करते हैं स्ट्रोंशियम के साथ, थोड़ा सा स्ट्रोनिशियम के साथ, तो वो स्ट्रोनिशियम उसमें Na की जगह पर घुस जाता है. सो स्ट्रोंशियम इज अ फॉरेन इम्प्योरिटीज, फॉरेन एटम्स, तो फॉरेन एटम्स यहाँ आ जा रहा है, तो दो क्लोरीन्स की जगह पर एक स्ट्रोंशियम फिट हो सकता है, एंड दिस इज कॉल्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स. तो NaCl में भी इम्प्योरिटीज आ गया है, क्यों? कुछ फॉरेन एटम्स के कारण आया है. तो कैटायनिक वैकेंसी प्रोड्यूस्ड, तो यदि कैटायंस घट जाएगा तो कैटायनिक वैकेंसी होगा, एनायंस घट जाएगा, एनायनिक वैकेंसी होगा. नंबर ऑफ कैटायंस ऑफ हायर वैलेंस और डिफरेंस इन द वैलेंस एक्सॉस्ट कैटायंस एनायंस. तो ये दो तरह का होता है, कैटायनिक और एनायनिक. तो हम लोग आगे इसको फिर से देखेंगे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स फर्दर. यहाँ दो तरह का, मेटल एक्सेस और ये मेटल डिफिशियंसी वाला दिया हुआ है. क्लियर? तो इसके लिए एक एनिमेटेड वीडियो है, यदि हम लोग देख लेते तो अच्छा होता, लेकिन टाइम नहीं है. नेक्स्ट क्लास में इसको हम देखेंगे एनिमेटेड वीडियो के थ्रू से कैसे डिफेक्ट्स अराइजेस होता है. सो थर्ड वन, दैट इज नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स. व्हाट इज नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स? तो स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हम लोगों ने पढ़ा कि जिसमें स्टोइचियोमेट्री या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या केमिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस नहीं होता है, बट नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स चेंजेस इन देयर chemical properties. So non-stoichiometric crystals are those which do not obey the laws of constant proportions. जो law of constant proportions को fulfill नहीं करता हो. The numbers of positive and negative ions present in such compounds are different from those expected from their ideal chemical formula. फॉर्मूला से जो आइडियल फॉर्मूला होता है उससे थोड़ा चेंज हो जाएगा. हाउएवर द क्रिस्टल एज अ होल इन न्यूट्रल, मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं आता, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस होता है. टाइप्स ऑफ नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर एज फॉलोज. तो इट इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स एंड सेकंड इज मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट्स. तो इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम, मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स मींस मेटल इज इन एक्सेस. सो मेटल इज एक्सेस, that means non-metal is indeficient. non-metal जो है एनायनिक वैकेंसी के कारण हो सकता है या मेटल लॉस होने के कारण हो सकता है. so metal excess defect is due to anionic vacancies. see first one, due to anionic vacancies. anionic vacancy के कारण ये ऐसा राइज होता है. so alkyl halide like sodium chlorides. So alkyl halides like sodium chloride and KCl shows types of defects. So it is not alkyl halides but alkali metal halides. यहाँ थोड़ा हम प्रिंटिंग मिस्टेक किए हैं,
को सुधारना पड़ेगा। से दिस अल्कली नॉट अल्काइल, हम अल्काइल नहीं है। हाँ, इट इज अल्कली, कैपिटल में आ गया। हाँ, अल्कली हैलाइड, अल्कली मेटल हैलाइड्स, alkali metal halide like NaCl, KCl shows these types of defects. Centers are the site from where anions are missing and the vacant sites are occupied by electrons. तो जहां से मिसिंग होता है वो इलेक्ट्रॉन्स उसको ऑक्यूपाई कर लेता है, एंड दैट सेंटर इज कॉल्ड एफ सेंटर्स दैट कंट्रीब्यूट्स द कलर. So F center contributes color and paramagnetic nature. So paramagnetic, you know, that is attraction toward the magnetic field, slightly attracted होगा, electrons बढ़ेगा तो. F stands for German words Farbenzender, meaning color. तो F का मतलब होता है Farbenzender. Farbenzender एक जर्मन वर्ड्स है जिसका मतलब होता है कलर. तो ये कलर प्रोड्यूस करता है यदि मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है ड्यू टू anionic vacancy. Clear? Second is metal excess defect due to presence of extra cations. यदि कोई extra cations present हो तो भी metal excess defects हो सकता है. एक anionic vacancy के कारण हुआ, दूसरा extra metals atoms के कारण हुआ. So zinc oxides is white in color. If it is pure, then it whitish color. Zinc oxides white होता है at room temperature, but on heating it loses oxygen and turns to yellow. जो white था उसको हीटिंग करेंगे तो ये येलो में टर्न हो जाएगा. So this shows that oxygens are removed here. तो यहाँ से क्या हो जा रहा है, metal excess defects due to presence of extra cations. तो cations बढ़ जा रहा है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाए. Next is metal deficiency defects. So metal deficiency defect वैसे इसको कंप्लीट कर देते हैं, टाइम हालांकि हो चुका है. Anyway, 1 मिनट का है. सो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट जैसे मेटल एक्सेस डिफेक्ट था उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी. मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट्स या तो कैटायनिक वैकेंसी होगा या कोई मेटल या तो वहां लॉस कर सकता है. सो इट इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ए मेटल आयन फ्रॉम द लैटिस साइड्स एंड चार्ज इज बैलेंस्ड बाय आयंस हैविंग हायर पॉजिटिव charge. Transition metals exhibit these defects like FeO, ferrous oxides, which is found in the compositions from ferrous. यहाँ कितना है 1 और ऑक्सीजन 1 होना चाहिए, बट ferrous